Yes, which topics we had covered in the last lecture? चलो बताओ जल्दी से. Yes, fast. CLR कैसे वर्क करता है और बेस क्लास लाइब्रेरी और ASP.NET. Yes, ASP.NET framework. Okay. Okay. Which type of application we can create under the .NET framework? Which type of applications we can create under the .NET framework? Yes, Kirti. Kirti. Yes, ma'am. Which type of applications we can create under the .NET framework? Web service, Hmm. mobile, Web services, mobile application, and web application, web application, web applications. Yes, okay. Yes, what is the working of CLR? What is the use of CLR? Yes, desktop application, Windows application also we can create, show it. Yes. What is the function of CLR? Yes, चलो जल्दी बताओ, कल ही पढ़ा हम लोगों ने. What is the function of CLR? CLR सोर्स कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है. Yes, source code को native code में convert करता है. Yes, good. How it converts? How it converts? कैसे convert करेगा? What is the procedure for conversion? सोर्स कोड लैंग्वेज कंपाइलर से कंपाइल होके MSIL कोड में जाता है और फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसको नेटिव कोड में. Yes, very good. Good. Okay, yes. Now today we will learn what is managed code and unmanaged code. ठीक है. हम आज पढ़ेंगे managed code and unmanaged code. That one topic is remaining na in the last lecture. Today we will cover that. Then we will start the C# language. Okay. First of all, we will learn managed code and unmanaged code. Yes. Wait. Okay. Yes. Screen is visible to everyone. Screen visible है सबको. Yes, ma'am. yes, Okay. Okay, what is manage code? First of all, we will learn the manage code. आपको पता है what is manage code, but okay, ठीक है. A code which is written to aim to get the services of managed runtime environment execution like runtime. Okay, CLR, common language runtime in the .NET is known as manage code. Okay, I am again reading a code which is written to aim to get the services of the managed runtime environment execution like CLR in the .NET is known as manage code. Means which language is called the manage? हमारे .NET framework में कौन सा manage code किसको बोलेंगे हम लोग? IL language, ठीक है. IL language is a managed code, ठीक है. That is run in the common runtime environment. जो IL language है, intermediate language है, that is a managed code. Okay, why? Because it is जो CLR जो है, ठीक है, common language runtime, ठीक है, common language runtime जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो लैंग्वेज इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेज कोड बोलते हैं, ठीक है. मीन्स दैट इज ए इंटरफेस बिटवीन द मशीन कोड एंड मेन जो सोर्स कोड है उसके बीच का जो इंटरफेस जो लैंग्वेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेज कोड.
ओके, द मैनेज्ड रन टाइम एनवायरनमेंट, सीएलआर का जो सीएलआर जो कोड प्रोड्यूस करता है मैन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईआर लैंग्वेज। आईआर लैंग्वेज इज अ मैनेज कोड। ओके, द मैनेज रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज like garbage collection, type checking, मतलब CLR, this is a working of CLR और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, गार्बेज कलेक्शन, टाइप चेकिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, बाउंस चेकिंग, ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय दिस CLR। तो CLR एनवायरनमेंट, CLR जो है, ठीक है, डॉटेड में जो CLR जो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तो वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम थ्रू जो कोड जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज कोड। ओके, मैंने और सेलर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन भी करता है, ठीक है। द एप्लीकेशंस रिटन इन द लैंग्वेजेस लाइक जावा, C#, .NET are always aimed at a runtime environment service to manage the execution, and the code written in these types of languages are known as managed code। ठीक है, जो कोड्स हम लोग लैंग्वेज सोर्स कोड जो है, जो उसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, मतलब जो अंडर द डॉट नेट फ्रेमवर्क में जिसको हम लोग टाइप करते हैं वो कोड कन्वर्ट हो जाता है आईएल में, ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैनेज कोड। ठीक है, मतलब डायरेक्टली वो नेटिव कोड में कन्वर्ट नहीं होता। इन द सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज क्या होता है, आपका जो सोर्स कोड है डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज अ अनमैनेज कोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमैनेज कोड। दिस इज अ फिगर फॉर अनमैनेज कोड। आपका जो सोर्स कोड है, ठीक है, जब उसको आप रन कर कंपाइल करते हो, रन करते हो, तो योर सोर्स कोड विल बी कन्वर्टेड टू द मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है, जो डायरेक्टली सीपीयू उसको एक्सेस करता है। दैट इज अ आपका क्या हो गया, अनमैनेज कोड, वो आपका क्या हो गया, अनमैनेज कोड। बट इन दिस डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या हो रहा है, जो फिगर हमने, एक मिनट, 1 सेकेंड, वेट, इन दी डॉट नेट फ्रेमवर्क द सोर्स कोड जो है, ठीक है, द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, तो इट इज अ मैनेज कोड, वो आपका क्या हो गया, मैनेज कोड। ठीक है, दिस इज द फिगर, ये इसमें सोर्स कोड जो है, लैंग्वेज कंपाइलर विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द MSIL कोड। तो सीएलआर क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, तो ये जो कोड जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द मैनेज कोड। ठीक है, एंड इन दी सी और C++ लैंग्वेज, जो पहले जो बेसिक लैंग्वेज जो थे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ने, जो बेसिक्स लैंग्वेज वो क्या करते थे, सोर्स कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव कोड में कन्वर्ट करते थे, तो उसको दैट इज कॉल्ड द अनमैनेज कोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमैनेज कोड। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेज कोड एंड अनमैनेज कोड। ठीक है, सी यहाँ पे इन लोगों ने लिखा अनमैनेज कोड। इन अनमैनेज कोड द मेमोरी एलोकेशन, टाइप, सेफ्टी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा मैनेज बाय द डेवलपर। ओके, डेवलपर मैनेज करेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेमोरी अकर लाइक बफर ओवरफ्लो, मेमोरी लीक, पॉइंट ओवरहेड एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स आर देयर इन द C और C++ लैंग्वेज। ठीक है, बट इन द CLR, the CLR provides the facility for memory management, garbage collections. Okay, so this is the difference between managed code and unmanaged code. Clear? In the unmanaged code, your source code will be converted directly into the machine code, but in the managed code, जो CLR compiler will convert your source code into the MSIL code, उसको हम लोग बोलते हैं managed code. ओके, so this is the difference, manage code and unmanaged code। तो यार IR जो है इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है दैट इज अ मैनेज कोड। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज कोड, एंड देन जस्ट इन टाइम कंपाइलर विल कन्वर्ट दैट MSIL कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज और native code। okay, machine language or machine code and native code both are the same। so this is a managed code and unmanaged code। ठीक है, तो IL is a managed code, CLR provides the environment for creating the managed code। okay, कौन environment provide करता है, CLR। the CLR, the function of CLR will provide the managed code। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। yes, so here our chapter 1 is completed। ठीक है, of the unit 1। ठीक है, यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। यू हैव टू राइट दी क्वेश्चंस, PDF जो मैंने आपको अभी तक नहीं दिया, आई विल सेंड, तो ये आपको लिखना, यू हैव टू राइट इन अ नोटबुक इनटू 1 or 2 लाइंस। ठीक है, फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू राइट। ओके, नाउ चैप्टर 2 इज रिलेटेड टू C# लैंग्वेज। ओके, C# लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, C# लैंग्वेज। तो टुडे वी विल स्टार्ट द C# लैंग्वेज। wait okay,
Unit 1 C Sharp language. Okay, this is a basic knowledge about the C Sharp language. Okay, the C Sharp उसको क्या बोलते हैं? CSHARP sharp. ठीक है, the symbol जो है that is called as sharp, SHARP, and C sharp language. ठीक है, C sharp is a modern general purpose object oriented programming language developed by the Microsoft. This is a common information about the C sharp language. ठीक है, in the .NET framework we can use many languages, but according to our syllabus we have to learn C sharp language. Clear students? Okay, तो हम लोग C sharp language ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो it is object oriented language. Now you know what is object oriented language. ठीक है, which type of object oriented language you have learned up to now? कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ा आप लोगों ने अभी तक? जावा और C++. Yes. Okay. और Python. Yes, Java, C++, Python, all are the object-oriented language. ठीक है, तो like that C Sharp is also object-oriented language and that is developed by the Microsoft. किसने develop किया है? Microsoft. It is a modern general-purpose programming language. It is object-oriented. It is easy to learn. ठीक है, it is easy to learn. Why? Because it is similar to उसका जो syntax जो है can dig with semicolon, then थोड़ा सा variable declaration का जो है that is similar, जो object oriented languages में जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही है, कोई इतना major difference नहीं है. It is a structured language. It produce efficient program. It can be compiled on variety of computer platforms. It is a part of .NET framework. Okay, it is a part of .NET framework obviously because it is developed by the Microsoft. C Sharp is a case sensitive. Okay, it is important. ये आपको याद रखना for the MCQ. C Sharp is a case sensitive language. Okay, case sensitive. Now you know what is a case sensitive. ठीक है, case sensitive मतलब capital and small will be considered different. Okay, all statement and expression must end with the semicolons when you will write the programs. Okay, so you have to end every statement with the semicolon like C++. Okay, आपको हर एक सेंटेंस को एंड में क्या करना है? सेमीकोलन. द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट एट द मेन मेथड. ओके, एज यूजुअल जैसे आप लोग जावा में भी लिखते हो ना कुछ, तो सिस्टम कुछ लिखते हो, बट स्टार्टिंग तो कहाँ से होता है? मेन से ही होता है. ओके, तो सेम इन द C Sharp लैंग्वेज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट एट द मेन मेथड. अनलाइक जावा, प्रोग्राम फाइल नेम कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्लास नेम. ओके, दैट इज ये डिफरेंस है. अनलाइक जावा, program file name could be different from the class name, but in the Java language आप लोग क्या करते थे? program file name and class name must be same in the Java, but in the C Sharp language में ऐसे नहीं है. You can assign the different name. ठीक है, program file name मतलब program names and class name. ठीक है, जो फाइल आप सेव करते हो, जो प्रोग्राम यू विल बी सेव, उसका नेम एंड दी जो क्लास डिफाइन करोगे आप लोग उसमें एट द टाइम ऑफ सोर्स कोड प्रोग्रामिंग के टाइम पे, तो दैट विल बी डिफरेंट, वो अलग होगा. ठीक है, तो ये आपको दिस पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर फॉर द एमसीक्यू. ठीक है, एमसीक्यू में यस और नो या तो जैसे मुझे, बट यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स अबाउट द C Sharp लैंग्वेज. यस, द सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन कंसोल एप्लीकेशन. ठीक है, दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम है, हम उसको रन बाद में करेंगे. नाउ अभी मैंने .NET इंस्टॉल नहीं किया है. आई विल एक्सप्लेन व्हेन I will install the .NET framework. ठीक है, अब एक्सप्लेन करके फायदा नहीं है. Okay, now data types in C Sharp language. Okay, data types, you know what is the data types? Integer, float, character, all are the data types. So this is a programming language, so we should know which are the data types available in the C Sharp language. The variable in the C Sharp are categorized into 3 data types. Okay, the first is value types, the second is reference types, and third is pointer types. Okay, there are mainly 3 types of data types in this C Sharp language. The first is value type, the second is reference types, and the third one is pointer types. First one is value types. Okay, the value types variables can be assigned a value directly. Okay, integer, character, float. We can assign value directly to this data types. Okay, use to any variables. They are derived from the class system dot value types. ये जो inbuilt available है. ठीक है, कौन से क्लास में अवेलेबल है? सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप्स. हमको कुछ नहीं करना, वी विल ओनली डिक्लेयर द वेरिएबल डायरेक्टली. बट ये जो डेटा टाइप्स जो है वो कौन से क्लास में अवेलेबल है? इन दिस क्लास सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप. ओके, ये जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं दैट आर अवेलेबल इन दिस क्लास. विच क्लास? सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप क्लास. ओके, दिस इज अ क्लास नेम.
means header file. You can say one type of header file. The value types directly contains the data. Some examples are integer, character, float, which store the numbers, alphabet and floating point numbers respectively. When you declare an integer type, the system allocates memory to store the value. Okay, means जो value है that is directly assigned to the variables. हमने integer a लिखा, ठीक है, integer a equals to 10, तो a is a variable, integer is a data type, equals to 10, तो 10 is a value. तो क्या हो जाएगा, मेमोरी में डायरेक्टली a स्टोर हो जाएगा, उसको वैल्यू असाइन हो जाएगा 10, तो दैट इज अ वैल्यू टाइप्स. तो उसको कैटेगराइज किया गया, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ऑल आर द वैल्यू टाइप्स through which we can directly assign value to the variable. Okay, this are the more, अगर आपको मैंने अपने यहाँ पे बेसिक ही बताया, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बट बोल, बाइट, कैरेक्टर जिसके थ्रू वी कैन असाइन वैल्यू डायरेक्टली टू द वेरिएबल्स, वो सारे क्या हो गया, वैल्यू टाइप्स हो गए. ठीक है, कैरेक्टर, डेसिमल, डबल, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग, एस बाइट, शॉर्ट, unsigned integer, ठीक है, unsigned long integer, short integer, तो all are the data value types in C sharp language. ठीक है, तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, रेंज दिया हुआ है. ओके, तो आपको उसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर, डेसिमल, ठीक है, उसका रेंज क्या है. यस, द सेकंड इज रेफरेंस टाइप. ओके, 3 टाइप्स हमने बोला, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप्स एंड पॉइंटर टाइप्स. 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. ओके, तो वैल्यूज टाइप्स मतलब क्या, इंटीजर, फ्लोट वगैरह, ऑल आर द वैल्यू टाइप. द सेकंड इज रेफरेंस टाइप्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट्स? रेफरेंस मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना या रेफर करना. ओके, मींस एड्रेस वी कैन से, ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग जो स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, the reference types do not contain the actual data stored in a variable, but they contain the reference to the variables. Okay, मतलब address we can say कि memory का address हम लोग assign करते हैं, so that is called the reference types. Okay, in the integer a लिखा तो a directly we can assign the values. ठीक है, but हम लोग वैल्यू की जगह पे उसको रेफरेंस असाइन करें, पॉइंटर्स जो आप लोग उसको बोलते हो. ठीक है, दैट इज रेफरेंस टाइप. इन अदर वर्ड्स दे रिफर टू द मेमोरी लोकेशन. हम लोग वेरिएबल को क्या असाइन करें, वी आर असाइनिंग द मेमोरी लोकेशन टू एनी वेरिएबल्स. ओके, नॉट वैल्यू. अगर हम लोग वेरिएबल को वैल्यू दिया तो वो वैल्यू टाइप हो जाएगा, बट इफ वी आर assigning the memory location to any variable, it is called the reference type. Using multiple variables, the reference types can refer to a memory location. Okay, if the data in the memory location is changed by one of the variables, the other variables automatically reflect the change in the value. Okay, there are 3 types of references. Data types are the object, dynamic and string. Okay, object is a data type, dynamic is data type and string is a data type. But which type of data types? Reference types. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, reference type. Integer, float, all are the value types. Object, dynamic and strings are the reference type. Okay, ऑब्जेक्ट टाइप आई थिंक यू हैव यूज्ड इन योर प्रीवियस, कोई लैंग्वेज में आपने यूज किया होगा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, आई थिंक जावा में यूज किया होगा. ठीक है, द ऑब्जेक्ट टाइप डेटा टाइप इज द अल्टीमेट बेस क्लास फॉर ऑल डेटा टाइप्स इन द सी शार्प कॉमन टाइप सिस्टम. ओके, ठीक है, जब यूज करेंगे तब हम दिखाएंगे. What is the object data types? The object data types can be assigned values of any other types, value types, reference type, predefined or user defined data types. If we declare the variable object type, okay, अगर हम लोग कोई वेरिएबल को ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन करें, then we can assign any type of value to that variables. Clear? For example, हमने integer a लिखा तो we can assign only numeric values. Okay, only numeric values, मतलब without floating point values we can assign to the variable a. Float लिखा तो we can assign floating points value to the float variable. ठीक है, but if you will declare any variable using object data type, then you can assign any type of values to that variables. Okay, मतलब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, कोई वेरिएबल को ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट ए लिखा तो आप ए को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी वैल्यू दे सकते हो. यू कैन ऑल्सो असाइन द स्ट्रिंग वैल्यूज टू दैट वेरिएबल. ओके, तो दैट इज ऑब्जेक्ट टाइप. सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, the object types can be assigned values of any other types, value types, reference types, predefined types or user defined types. You can assign any types of values to the object type variable. Clear? Yes or no? Clear? Yes. हाँ,
ठीक है, दिस इज अ मेन, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट टाइप मतलब कि इंटीजर आपको पता है, यू नो दी फ्लोट, यू नो दी स्ट्रिंग, ये सारे आपको पता है। बट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कि अगर कोई वेरिएबल को आप ऑब्जेक्ट असाइन करे हो, वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल असाइन करे हो, सॉरी ऑब्जेक्ट टाइप असाइन करे हो कोई वेरिएबल को, तो आप वो वेरिएबल को यू कैन गिव एनी टाइप्स ऑफ वैल्यूज यू कैन गिव। ठीक है, ये याद रखना है, प्लीज नोट डाउन। ओके, नोट डाउन करते जाओ। However, before assigning values, it needs types conversion. Okay, मैंने आपको बोला कि you can assign any type of values to the object type variable, but before that you have to convert it. आपको उसको क्या करना पड़ेगा, convert करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। When a value type is converted to object type, it is called boxing. Okay, when a value type, ठीक है, कोई वैल्यू आप ऑब्जेक्ट को असाइन करे तो वैल्यू टाइप जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप, जैसे इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, सेम ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज वेरी डेटा टाइप है, ओबीजे इज अ वेरिएबल, यू कैन गिव एनी वेरिएबल नेम हियर। ठीक है, यहाँ पे ओबीजे वेरिएबल लिखा है, आप ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, देन ओबीजे इक्वल्स टू 100। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन किया है, 100, तो 100 इज अ वैल्यू टाइप। ओके, मतलब इंटीजर वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्ट, बॉक्सिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड दी बॉक्सिंग। मतलब व्हेन अ वैल्यू टाइप इज कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट टाइप, इट इज कॉल्ड बॉक्सिंग। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप को अगर आप वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करते हो, ऑब्जेक्ट वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल को, व्हेन यू आर असाइनिंग दी न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग। वैल्यू टाइप वैल्यू असाइन कर दो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी बॉक्सिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू शुड नो फॉर द एमसीक्यू एग्जाम, आपको याद रखना है। When object type is converted to value type, it is called unboxing. ठीक है, it is called unboxing। अब उसका उल्टा कर दो, ठीक है, when the object type is converted to the value type, it is called unboxing। ठीक है, वैल्यू टाइप को हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करें, दैट इज कॉल्ड बॉक्सिंग, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट टाइप इज कन्वर्टेड टू वैल्यू टाइप, इट इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। तो आपको बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग याद रखना है। वी विल डू द एग्जांपल। ठीक है, हम इसका एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल्स होगा मंडे, तब हम लोग इसका एग्जांपल करके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हर एक एक डेटा टाइप का वी विल डू द एग्जांपल फॉर एवरी डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है, एक एक एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे। तो अभी के लिए याद रखो, दी वैल्यू टाइप इज कन्वर्टेड टू द ऑब्जेक्ट टाइप, उसको बोलते हैं बॉक्सिंग, एंड उसका उल्टा ऑब्जेक्ट टाइप इज कन्वर्टेड टू द वैल्यू टाइप, इट इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। वी विल डू दी वन प्रोग्राम रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। ठीक है, next week जब Monday we have the practical, okay, on the Monday we have practical, at that time we will do this। Yes, the second is string type। string is also reference type variable। ठीक है, string is also reference type variable। the string type allows you to assign any string values to variables। you know what is a string। ठीक है, string, how to, string क्या है, you know, string is a set of characters। ठीक है, the string type is an alias for the system dot string class। it is derived from the object type। the value for a string type can be assigned using any literals into two forms, quoted and unquoted, at the rate quoted। ठीक है, मतलब how you can declare these string variables, तो ऐसे string लिखना है, string is a data type, str is a variable, equals to करके whichever string you want to define a string दे सकते हो। अदर जो है that is ऐसे at the rate करके you can assign the string value। तो at the time you know आपको मतलब string लिखना important नहीं है, डायरेक्टली you will define string with variable like as at the rate, मतलब string है, and directly give the values। okay, so there are two ways to define the string, and string is a reference type। string कौन से type का variable है, string is a reference type variable। okay, we will learn the basic। ठीक है, then third is a pointer type। pointer type is also reference type of variable। what is pointer, you know, pointer type variable store the memory address of another type। ठीक है, pointers in the C# have the same capabilities as the pointers in C or C++। सी प्लस प्लस में जो आपने पॉइंटर पढ़ा, सेम फीचर्स है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग द पॉइंटर टाइप इज ऐसे आप है कि डेटा टाइप्स लिखना है, स्टार यू हैव टू राइट एंड आइडेंटिफाई वेरिएबल्स नेम। ठीक है, वेरिएबल्स नेम मतलब वो एक्चुअली एड्रेस ही होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, पॉइंटर रिलेटेड एंड ऑब्जेक्ट, ये दो डेटा टाइप्स का वी विल डू दी प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ऐसा एक्सप्लेन करूंगी तो थियरी नहीं समझ में आएगा। तो यू शुड remember there are three types of data types in this C++ language: value types, reference types, and pointer types। okay, value types, reference types, and pointer types, and in the reference types again there are three types: object, dynamic, and string।
ऑब्जेक्ट, डायनेमिक एंड स्ट्रिंग। ओके, व्हाट इज डायनेमिक, ये भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उसको प्लीज नोट डाउन करके रखो एंड प्लीज मुझे रिमाइंडर देना मैम ये प्रोग्राम्स हमको करना है, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप्स रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है दैट वी विल डू, एक स्मॉल एग्जांपल हम लोग देख लेंगे सारे डेटा टाइप्स के लिए, तो यू विल गेट द क्लियर आइडिया। Okay, yes, variables. What is variables? Variable is nothing but a name given to storage data. Okay, or we can assign the values to the variables. Variables are used to store the data. कोई भी definition you can write. Okay, defining syntax क्या है उसका same, जैसे आप C++ में है तो C में किया same syntax है, data type पहले लिखना है, variable का name लिखना है and semicolon. Okay, syntax same है। मोस्टली सी शार्प लैंग्वेज में सिंटैक्स सिमिलर ही है सी प्लस प्लस एंड जावा को। वाई? बिकॉज इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। थोड़ा डिफरेंस है बट मोस्टली तो सेम ही है, बिकॉज सी शार्प इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो डिक्लेयर कैसे करना है वेरिएबल्स, ऐसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स लिस्ट, और कोई भी सिंगल वेरिएबल देना है तो सिंगल वेरिएबल्स। इफ यू वांट टू गिव द मल्टीपल वेरिएबल एट द सेम टाइम तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। सेमीकोलन, ठीक है। The data type must be a valid C sharp data types including character, integer, float, double or any user defined data type. And variables list may consist of one or more identifier names separated by the commas, ठीक है। आपको पता है, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द सिंटैक्स, डेटा टाइप्स स्पेस करके उसका वेरिएबल नेम, ठीक है। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। व्हिच आर द डेटा टाइप्स, कौन सा डेटा टाइप्स है, थ्री टाइप्स क्या है? यस, चलो बोलो। Value, reference, and pointer. वेरी गुड। ओके, तो ये थ्री टाइप्स के डेटा टाइप्स आप यूज कर सकते हो कोई भी। यस, वैलिड एग्जांपल डेफिनेशंस यहाँ पे दिया है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ओके, इंटीजर आई जे के, कैरेक्टर सी एच, ये इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यू नो, इजी है, ठीक है। यू कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। आप वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम पे, उसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, वी हैव असाइन सम स्टार्टिंग वैल्यू टू द वेरिएबल्स, ओके, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, इट्स कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। तो इंटीजर आई इक्वल्स टू 100, तो आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, 100 होगा। whenever you will use I in your program, तो I का पहला स्टार्टिंग वैल्यू वो क्या लेगा, 100, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जो आप करते हो C में वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और मोर एग्जांपल्स दिया हुआ है, इंटीजर D इक्वल्स टू 3, F इक्वल्स टू 5, ठीक है। बाइट इज अ वेरिएबल, Z इक्वल्स टू 22, ठीक है। फॉर्म इसमें कुछ न्यू है नहीं। कैरेक्टर, दिस इज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर है इसीलिए हमने उसको इन सिंगल कोट में डिक्लेयर किया है, वेरिएबल का वैल्यू दिया है, ठीक है। यस, रूल्स कोई मुझे बताएगा, व्हाट आर द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या है सी में? द सेम रूल्स विल बी अप्लाई इन द सी शार्प लैंग्वेज। ओके, व्हिच आर द रूल्स, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, क्या क्या कंडीशंस है? द सेम रूल्स विल बी असाइन इन द सी शार्प लैंग्वेज। ओके, कौन सा रूल्स था, वेरिएबल्स क्या कैसे होना चाहिए? यस, वेरिएबल्स के जो रूल्स थे ना, 3 to 4 रूल्स आई थिंक था कि द वेरिएबल्स नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम A to Z और अंडरस्कोर। ओके, देन स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल, स्पेशल सिंबल्स हम लोग नहीं यूज कर सकते। ओके, देन कीवर्ड्स आल्सो वी कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल्स की तरह कीवर्ड्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब क्या, जो पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है, इफ, for loop, printf, scanf, ठीक है, integer, float, all are the keywords predefined है, ठीक है, जिसका हम लोग एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। then next rule is C sharp is a case sensitive language। okay, कौन सा लैंग्वेज है, case sensitive language, तो obviously it upper case and lower case will be identified as a difference। okay, variable names are case sensitive, yes Zamiruddin। okay, तो दिस रूल्स आर सेम। ओके, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो रूल्स है वो सेम है जो सी लैंग्वेज में था वो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया, तो यू शुड रिमेंबर, ठीक है। आप लोग वेरिएबल्स का नेम देने के टाइम यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स। यस, नाउ ऑपरेटर्स। ओके, एनी ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर, यू नो, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या है, मतलब
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको प्रोसेसिंग करना है तो वी हैव टू दी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी शार्प लैंग्वेज: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, अनएरे ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, सेम है जो आपने प्रीवियस लैंग्वेजेस में पढ़ा, कोई चेंज नहीं है। बाइनरी ऑपरेटर्स, arithmetic, relational, logical, bitwise, assignment, all are the binary operators. प्लस प्लस, इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस, ठीक है, उसको हम लोग अनएरे ऑपरेटर्स बोलते हैं। एंड टर्नरी ऑपरेटर, ओके, टर्नरी ऑपरेटर्स, ये पता है व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर, यस और नो? No, ma'am. नहीं ओके, नहीं पता, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स जैसा है, ठीक है, ओके, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर मीन्स क्या? इफ एल्स जैसा आप लोग यूज करते हो ना, उसका सिंटैक्स है फर्स्ट यू विल राइट दी कंडीशन, ठीक है। आप पहले क्या करोगे? कंडीशन लिखोगे, ठीक है, कंडीशन लिखोगे ए ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क करोगे, ठीक है, देन आप क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क, देन आप क्या लिखोगे? राइट इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो पहले राइट ऑप्शन लिखोगे ए, देन कॉलम करके सेकंड ऑप्शन लिखोगे बी। तो डिपेंड्स ऑन दैट कंडीशन, ठीक है। जो कंडीशन रॉन्ग है तो रॉन्ग ऑप्शन विल बी प्रिंटेड, राइट है तो राइट ऑप्शन विल बी प्रिंटेड। दैट इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर यू कैन से, ठीक है। ये आप लोगों ने, ठीक है, इसका मैं एग्जांपल हम लोग करेंगे, ठीक है, वी विल डू द एग्जांपल इसके। बाकी ऑपरेटर्स आपको पता है, ठीक है, प्लस माइनस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मॉड्यूलस बी, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर भी पता है, लॉजिकल भी पता है, बिटवाइज भी। ऑपरेटर्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो भी सेम है। ये भी आई थिंक आप लोग ने पढ़ चुका होगा, नहीं पता है तो हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर, ओके। फर्स्ट इसमें हम लोग क्या करते हैं? कंडीशन पहले लिखते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के पहले वी विल राइट द कंडीशन, देन आफ्टर द क्वेश्चन मार्क वी विल राइट द करेक्ट ऑप्शन। वो कंडीशन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लिखेंगे, कॉलम करके वी विल राइट द रॉन्ग आंसर, ठीक है। देन जब उसको हम लोग रन करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल रन दिस प्रोग्राम, ये तो बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर राइट है तो राइट ऑप्शन विल बी प्रिंटेड, रॉन्ग है तो रॉन्ग आंसर विल बी प्रिंटेड, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये मुझे याद करवाना, वी विल डू दी वन एग्जांपल फॉर दिस, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोग्राम्स है, बट ये प्रोग्राम्स जो है ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। पहले मुझे आपको व्हाट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो क्या है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देन हाउ टू चूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, हाउ टू चूज लैंग्वेजेस, कैसे चूज करना है, वो सब हम लोग करेंगे। देन मैं आपको ये प्रोग्राम जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, अभी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो फॉर नाउ आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है। विच टॉपिक्स वी हैड कवर्ड? आज क्या पढ़ा हमने अबाउट दी सी शार्प? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न, वी हैड लर्न दी मैनेज कोड एंड अनमैनेज कोड, ठीक है, हमने वो वाला पढ़ा, व्हाट इज मैनेज कोड, व्हाट इज अनमैनेज कोड। देन बेसिक सी शार्प लैंग्वेज क्या है, उसका जनरल इंफॉर्मेशन, इट इज अ केस सेंसिटिव, हर एक स्टेटमेंट एंड विद द सेमीकोलन, प्रोग्राम स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, मेन मेथड, देन प्रोग्राम्स फाइल नेम कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्लास नेम। आपको ये याद रखना है, जब मैं प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करूंगी इन द .NET में तो आपको मुझे बताना ये रॉन्ग है ये राइट है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे, यस। देन और डेटा टाइप्स क्या है वो हमने देखा, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, उसको हमने देखा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट टाइप्स वगैरह, स्ट्रिंग टाइप, पॉइंटर टाइप्स, and what is variables, how to declare the variables, syntax for declaring variables, that we had covered. देन ऑपरेटर्स, ठीक है, मैंने इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है बिकॉज यू नो ऑपरेटर्स, ठीक है। डायरेक्ट जब हम उसका यूज करेंगे प्रोग्राम में तो आपको समझ में आ जाएगा, तो अलग से इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन द फ्रॉम दिस सेमेस्टर वंस आप उसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, सी लैंग्वेज आप उसको पढ़ते आ रहे हो, ऑपरेटर्स वगैरह, तो उसमें कोई न्यू है नहीं। नाउ यू आर इन द 5th सेमेस्टर, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। तो डायरेक्टली हम लोग उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। इसका ऑपरेटर्स हैं, प्रोग्राम्स अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं क्योंकि टाइम वेस्टेज है, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं उसको रन करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। यस, एनीवन हैज एनी डाउट्स? कोई किसी को डाउट है अभी तक जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया यूनिट 1 का चैप्टर 1 एंड आज का जो, एनीवन हैज एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, एंड प्लीज नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, जो जो पॉइंट्स आपको लग रहा है तो आप एक नोटबुक बनाओ, उसमें नोट डाउन करते जाओ। एंड जो क्वेश्चंस हम लोग ने, मतलब जो टॉपिक्स हमने कवर किया है उसके क्वेश्चंस जो पीडीएफ में है, एक मिनट यहाँ पे डाल दो क्या चैट बॉक्स में अभी के लिए पीडीएफ,
गूगल क्लासरूम में हम लोग Yes. हाँ गूगल क्लासरूम में बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं डाल देती हूँ चैट बॉक्स में। आई एम सेंडिंग द PDF। ओके, तो आप ना उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो, अभी टाइम है तो। एंड प्लीज़ जब लिखोगे तो समझ के लिखो, ओके? ऐसे मत लिखना कि मैम ने बोला है। आप थोड़ा टाइम लोगे उसको लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? 1-2 दिन ज़्यादा लोगे लिखने के लिए चलेगा, बट प्लीज़ राइट प्रॉपरली। मैं PDF सेंड कर दे रही हूँ अभी चैट बॉक्स में, 1 मिनट। AWP क्वेश्चन बैंक डाल रही हूँ, ठीक है? अरे ये शोएब को चला गया, वेट, सबको जाना चाहिए था। 1 मिनट है।